Today we are going to see the last point from our third module, which we have seen yesterday. We will complete then and move on with the next module. So yesterday we have seen these control statements, iterative, right? For loop, while loop, nested, also the infinity loop. But today we are going to see the control statements part, the third part, which I showed you earlier. We have seen from this part, see, just overview. We have seen these two parts, right? Conditional statements, wherein we had if statement, if else, and nested if else. And then we have seen iterative statements, for loop, while loop, and nested loop, how we used to write it. Now we'll be seeing these three keywords. That's break, continue, and pass in under control statements. So whenever we write any kind of programming, there's in some kind of alteration process, right? If you want to break the process, you want to again continue, you want to halt it over some place. If a certain condition is met, so and so X will be happening, right? So this normally breaks your loop. Then if you want to again continue, you have to use some keywords. So first we'll go with the break statement. What does break statement does? It terminates the loop immediately whenever that statement is encountered, right? So basically this is used in a kind of range or wherever you're using a loop statement. So if I'm having a for condition as in for in range, if I take 5 and if I write up a condition that if I equal to 3 and break, and then I'll print I. You can see the statement is breaked whenever the condition for ranging from 0 to 5 is started as 0, 1, and 2. So the third iteration, the fourth iteration will be the value equal to 3. So when if there's such condition, what we are specifying here is at break. So the loop terminates over here. When i's value equal to 3. So the output doesn't include values after 2, only 0, 1, and 2. So 3 iterations will be done, and later on when the value is set, this condition is met, what will happen? The program will be terminated, right? We can do this using while loop also. So for while loop, what we need to do, we need to give a condition as suppose we are starting from 0, I equal to 0. I'll set a condition as while I of 5. So we'll again use the same condition of if I equal to 3, then break. We'll print the I and we'll go for increment. This will be the same, right? It is giving the same output wherein used for loop. This is with the while loop. I'll write it here using for loop and here using while loop. And in this, break will discontinue, right? It will stop. The program will be terminated. No more outputs will be printed on the screen. So that's how you terminate. Termination, that too in a controlled manner, not like we are facing some issues with the range, with the capacity, with kind of mathematical or syntactical problem. That termination is different. That will be from the either from the interpreter or by some mistakes you have done in writing the program. This technically, programmatically, everything is okay. Break means termination. That is automatically handled. Now we'll see the continue statement. So continue statement skips the current iteration wherever you are in the loop, and the control flow of the program goes to the next iteration. Now the moment if I want to use break, the next moment I will also want to use continue, right? So there might be a condition where I want to skip some number
whether in this loop, and I want to skip 3 and I want to again continue as 4 and 5. So break will be used for exiting this loop. If I want to continue again, then I'll use continue keyword, right? So let's see an example for in range. I equal to 3. I'll write it as continue. Now you can see 3 is skipped. And what happening? 3 skipped after 4. So this is again continue. In the previous examples, what we saw that it was terminating in both loops, even if you use for loop or while loop, right? Same if we want to print odd numbers from 1 to 10. So using continue keyword for a while loop, you can use it like way here. Continue statement using while loop. So I'll start with a number as 0. You can take any number you want to start with. While number will give a condition. We'll have some increment. So if for the odd numbers, printing odd numbers, then continue. Now this will print all the odd numbers within this range. As I'm starting from 0, all the odd numbers within this range will be printed. It skips the current iteration, right? It never terminates the program until the condition is met. Break, what will do, no matter what the syntax is, what the processing is, it will satisfy this condition and get you out of this loop. So the program, the moment you see this program, this is your final output. So no continuation again will be done unless and until this continue keyword is used somewhere. So this both are used because if you want to skip something and again continue something, if a certain condition is given, both keywords are essential. Now there's a condition in sometimes that you want to pass it, right? You can see here we have used some blank lines over here. So I want to pass it. I do not want to write anything. I want to continue within the same loop, but not in that exact block. So in Python programming, we use pass statement, which is a null statement, right? Which can be used as a, can say, placeholder for future code if I want to write. For example, suppose we are having a loop or function which is not implemented yet, but we want to implement it in the future. In such cases, what we'll do, we'll use pass statement. For example, I'll let you know. Let's see for the example, pass statement. So I take a value as 10, give a condition, and I'll let it as pass. And now we'll print something. I'll execute it. Now you have to notice here that the pass statement inside the if statement. However, nothing happens when the pass is executed, right? So you can say like it's like a NOP, right? No operation. Because if I do not write here anything, it will be like कि आपने if condition दिया है. What if this condition satisfies, does not satisfy it? What should be printed? So it will be blank, right? So I want to write here that this block will be used in future, right? So nothing will be written here. Suppose now if we do not use anything here, now see, there's an indentation error. Now what the compiler is thinking that ये वाला जो print statement है, इसका indentation गलत है, right? But that is not the statement. What I'm doing here is, मेरे को ये line, ये code की
इफ का जो स्कोप है, आई वांट टू मेक इट सेपरेट। ये प्रिंट हेलो और इफ का जो कंडीशन दिया है, देयर इज नो रिलेशन। ये अलग पार्ट होगा, ये अलग पार्ट होगा, बट द कंपाइलर इंटरप्रिटेशन इज दैट कि ये अगर कमेंट लाइन जा रहा है या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, तो इसका जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये इंटेंडेशन ये गलत है, तो इफ के हिसाब से उसको यहाँ पे होना चाहिए। राइट, सो द कंडीशन इज बेस्ड ऑन इंटीजर्स एंड द पासिंग इज योर प्रिंट हेलो। तो अगर मैंने इंटेंडेशन इस तरह से कर भी दिया है, तो दैट इज नॉट द एक्सपेक्टेड आउटपुट व्हाट वी आर राइटिंग द प्रोग्राम फॉर। तो वो गलत आ रहा है ना, आपको आउटपुट में गलत इंटैक्स या फिर कोई सिंटैक्टिकल गलत एरर नहीं दिखाई देगा, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग व्हेन वी आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, राइट। तो इसको ये जगह इसका सही है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना है अभी। तो जो भी सिंटैक्टिकल एरर आपको समझ में आ रहे हैं कि इंटरप्रेटर यहाँ पे करेगा, यू जस्ट नेग्लेक्ट इट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास यूज करते हैं। गेटिंग दिस, break, continue, and pass. These three statements were easy, right? This module at its level is also easy because कई बार आप लोगों ने ये यूज किया होगा, right? But अब fourth module हम लोग start करेंगे. These keywords are very easy. I'll save you so that I can share this file with you. Okay, we'll start with fourth module. That is object-oriented programming. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, बिकॉज दैट्स द थियोरेटिकल पार्ट वेर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाज अ वेरी बिग चेंज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसकी वजह से आज जो भी मॉडल्स, बिल्डिंग मॉडल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस ओओपी, राइट। तो जब भी आप ओओपी के बारे में सोचते हो, यू थिंक ऑफ क्लासेस, यू थिंक ऑफ objects, you think of attributes, methods, scope, and namespaces. This is very important, right? ये कुछ keywords हैं, अगर classes और objects आ रहे हैं और तो inheritance आएगा, right? Overloading and overriding, ये सारे statements आ जाएंगे. Data hiding, polymorphism, all these things are related to object oriented programming, right? ये सब चीजें हम कवर करेंगे. Now we'll start with our fourth module, which is very important. आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे लिख के दिखाए हैं. I'll tell you what those terminologies are. You note it down, या फिर आप ये फाइल जब मैं दूंगा तो उसको रीड करो. You try to understand, right? I'll tell you those terminologies because जब आप अभी कोड लिखेंगे ना, तो दिस इज विदाउट अ क्लास, राइट. मतलब इंटरनली वो ले रहा है विद इन द क्लास, लेकिन कीवर्ड हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया है टिल नाउ, राइट. वी आर नॉट explicitly using objects, classes, right, functions वगैरह जो भी लिए हमने, they were just like without a class. यहाँ पे क्लास जनरेट होता है, बट दैट विल बी हैंडल्ड एट द कंपाइलर पार्ट. लेकिन हमें एक्सप्लिसिटली लिखना है, क्योंकि जब मैं एक क्लास बनाऊंगा तो उसमें क्या फंक्शंस, क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, विल बी अ पार्ट ऑफ अ सिंगल मॉड्यूल. अब मान लो कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है, राइट, तो उसको मैं क्या करता हूँ, छोटे चंक्स में डिवाइड करता हूँ. देयर आर स्मॉल पार्ट्स व्हिच आर डिवाइडेड, उसको मॉड्यूल बोलते हैं हम लोग. तो मॉड्यूल में क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं. वाई क्लासेस आर इसेंशियल? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज एक प्रोजेक्ट बना लिया बेस्ड ऑन ग्रेडिंग सिस्टम, एग्जाम सेक्शन के लिए एक ईआरपी का एक पार्ट होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम मुझे बनाना है. एंड टुडे आई फाइंड आउट दैट
कि मेरे को ग्रेड्स सिर्फ डिस्प्ले करने हैं मार्क्स पे और परसेंटेज निकाल के देना है और ईच सब्जेक्ट का एंट्री कितना मार्क्स आउट ऑफ कितना मिला है ये देना है. Later on, I'll find out that my university got updated and we are having an autonomous accreditation. मतलब आप अभी अपना college set करो and you can decide how you are going to take the exam, what will be the criteria of passing, how many courses will be there, कितने को practical होगा, कितना theory होगा, कितने का exam external exam होगा, right? ये सब जो चीजें जब change होती जाएंगे ना, तो I can make newer classes and directly add it to my project. I do not have to rewrite the entire application, right? तो classes की वजह से addition और deletion was made easy. तो इससे क्या होता है, you do not have to work on your entire project. आप करंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का सारे वेरिएबल्स पता है, वर्क फ्लो स्ट्रक्चर मालूम है, उस आपको उसका आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड किया है ये मालूम है. नाउ इफ आई वांट टू सम ऐड सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज, तो एक क्लास बनाइए, प्रोग्राम में ऐड कर दीजिए एंड यू एग्जीक्यूटेड वंस, देयर विल बी नो मेजर चेंजेस, राइट? तो इसी तरह से ये जो एट्रीब्यूट्स मैंने सब दिए हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जब आप कहते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में आती हैं. तो फर्स्ट इज द क्लास. नाउ क्लास अगर आप कोई को पूछे तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप बोलना, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पाइथन इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिंस इट एग्जिस्टेड. मतलब ऐसा नहीं कि वो सी++, जावा जैसे लैंग्वेजेस हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस पाइथन क्रिएशन ना, क्लास यूज ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इज वेरी इजी टू राइट नाउ, right? So class is nothing but it is a user defined prototype for an object that defines a set of attributes which will try to elaborate an object. मान लो कि एक पेन है. Now we don't know कि क्या होगा उसको. If I want to make describe, I want to describe a pen, राइट? पेन के एट्रीब्यूट से हम लोग शुरू करते हैं कि पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, राइट? यू माइट हैव सीन मेनी एप्लीकेशंस. अगर हम कैमरा ऑन करते हैं और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का अगर हमने एल्गोरिथम रन किया है, तो एक एल्गोरिथम है योलो एल्गोरिथम विच आइडेंटिफाइज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. मान लो कि टेबल है, लैपटॉप है, बैग है, पेन है, या फिर चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, या देयर अ ट्री, राइट? कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कैसे आइडेंटिफाई करता है? हाउ डज अ कंप्यूटर विजन आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर फेस, और वो उसी आदमी का, उसी पर्सन का फेस है, वो कैसे एट्रीब्यूट से मैच करके आपको बता सकता है कि इतना परसेंट ये अभी जो करंट विजुअल है इज मैचिंग विथ योर डेटा सेट, कि जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर कर रखा है. तो स्टोर करके रखा है तो वहां पे क्या है, राइट? सो दोज पैरामीटर्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स. तो इफ आई वांट टू आइडेंटिफाई अ पेन, मेरे को क्या होगा, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, राइट? आई नीड टू टेल हाउ डज अ पेन लुक्स लाइक, राइट? सो लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन कि आप बताओ व्हाट यू थिंक कि अगर मेरे को एक पेन को आइडेंटिफाई करना है, राइट? इफ यू आर टीचिंग अ स्मॉल किड, उसको आप बोल रहे हो कि ये पेन है, राइट? तो वो देखेगा कि पेन कैसा दिखता है, राइट? यू कैन होल्ड अ पेन, पेन के कलर्स होंगे डिफरेंट, पेन का ब्रांडिंग अलग होगा, बॉल पेन, जेल पेन, इंक पेन, राइट? उसको क्लिक करना है, उसको कैप हटाना है उसका, इफ यू हैव टू रोल द पेन, राइट? बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे टू आइडेंटिफाई अ पेन, राइट? उसका शॉर्ट है, उसका साइज कम है, इट इज बोर, उसको जो होल्ड करने के लिए उसको ग्रिप होता है, पेन अगर दिख रहा है तो ट्रांसपेरेंट है, कोई और कलर का है, कोई कोई किसी ब्रांड का है, लॉट मेनी एट्रीब्यूट्स विल बी देयर, राइट? तो ये सब जब एट्रीब्यूट्स एक साथ आते हैं, यू राइट ऑल दीज एट्रीब्यूट्स इन अ फंक्शन, इन अ मेथड, और इसको आप बंडल करते हो एक क्लास में. दैट क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑब्जेक्ट एज पेन, राइट? अगर आप कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशन में देखोगे तो ये सारे एट्रीब्यूट्स पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑलरेडी फीड होंगे. अगर कोई नया आता है, न्यू इन्वेंशन ऑफ अ पेन, दैट सिंगल एट्रीब्यूट विल बी मिसिंग, लेकिन वो बोलेगा कि 80 to 90% फीचर्स मैच हो रहे हैं फ्रॉम द गिवन एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड डिक्लेयर इट एज पेन. तो कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंसेस पेन में अलग अलग होते होंगे, क्योंकि पेन का काम तो लिखना है, बट द शेप, साइज, कलर, द वे द पेन फंक्शंस,
वो सब अलग अलग होता जाएगा, राइट। सो इसी तरह से व्हाई डू वी कॉल इट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको ये वर्चुअल प्रोग्राम कहीं ना कहीं ऑपरेट करना होता है, कुछ ना कुछ आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो रियल वर्ल्ड से आप इसको कैसे मैच करोगे वर्चुअल टू रियल? बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर ने कभी भी पेन नहीं देखा है एंड यू वांट टू इंट्रोड्यूस कंप्यूटर एज एन पेन, कि जब भी भाई तो कोई एट्रीब्यूट देखेगा, कोई ऑब्जेक्ट देखेगा, तो ये एट्रीब्यूट्स के साथ मैच करके देख ले कि इसको पेन कहा जाता है। इन द मोमेंट यू सी सिमिलर फीचर्स, यू डिक्लेयर दैट एज अ पेन, राइट। सो इट माइट बी एनीथिंग। चेयर्स मान लो, अब चेयर की कितनी सारी वैरायटीज होंगे, राइट। सो द पर्पस ऑफ एनी वैरायटी ऑफ चेयर इज कि हम उस पर बैठेंगे। हम्म। तो दैट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स हैव टू बी अंडरस्टूड। तो इसको लिखना होता है, यू हैव टू नोट इट डाउन, जॉट इट डाउन। तो जब ये करेंगे तो उसको हम फंक्शन में पास करेंगे एंड विल लेट नो द कंप्यूटर दैट दीज मेनी फीचर्स कोलैबोरेटिवली मेक एन ऑब्जेक्ट। तो फेस जैसे होता है, आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, राइट, ये सारे उसके फीचर्स होते हैं। द मोर डिटेल्ड फीचर्स यू प्रोवाइड, जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स आप दोगे उतना रिजल्ट्स एक्यूरेट आता जाएगा। हम्म। तो उतना टाइम भी लगेगा उसको आइडेंटिफाई करने में, राइट। दिस इज द पावर ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्लियर हो गया आपको? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, कि ये सारे जो चीजें हैं ना, ये एक कीवर्ड में खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है और वो लॉजिक के पीछे का जो मैजिक है, हाउ डज इट हैपन्स, ये करेंगे तो इजी क्यों हो जाएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। Try to understand. At any instance for this theoretical part, if you have any queries, raise your hand or put a message in the chat box. I'll clear it. hmm? अब क्लास का तो हो गया, राइट। नेक्स्ट वेरिएबल व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज क्लास वेरिएबल। तो क्लास जब लिखते हैं तो उसके इंस्टेंस क्रिएट होते हैं, राइट। यू आर स्टार्टिंग एन इंस्टेंस, राइट। सो व्हाट डू वी कॉल दैट क्लास वेरिएबल एज? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लास वेरिएबल, a variable which is shared by all instances of a class। एक क्लासेस में मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे ना। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे अगर ये वाले प्रोग्राम को मैंने इसमें डाल दिया, क्लास में डाल दिया, ये क्लास के अंडर आ रहा है, तो एक वेरिएबल है ये। तो क्लास के अंडर का वेरिएबल n कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल मेथड्स, दैट इज कॉल्ड एज क्लास वेरिएबल। तो उसके इंस्टेंसेस है, मल्टीपल इंस्टेंसेस है, वो सबके साथ शेयर करता है, या जो क्लास में होगा उसको उसने अगर कॉल कर लिया, दैट विल बी एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। सो वो क्या हुआ? क्लास वेरिएबल हुआ, वेरिएबल का अंदर का वेरिएबल, क्लास के अंदर का वेरिएबल। सो अ वेरिएबल that is shared by all instances of a class. Hmm? Now there's a concept as data member. Data member is a class variable or an instance variable that holds the data। सिर्फ n अगर लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी अ क्लास वेरिएबल। इफ इट इज होल्डिंग वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, दैट विल बी अ डेटा मेंबर, क्योंकि उसमें डेटा आ रहा है, कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इट इज अ क्लास वेरिएबल। और कीवर्ड्स हैं अलग अलग, बट मतलब वही है, इंस्टेंस वेरिएबल, दोनों भी उसको बोला जाता है, दैट होल्ड्स डेटा एसोसिएटेड विथ ए क्लास एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। ये कीवर्ड्स ध्यान से सुनो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एट एनी इंस्टेंस इफ यू आर फीलिंग कि नहीं समझ में आ रहा है, ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, आई explain it again. Then we have function overloading. Function overloading is nothing but the moment we assign few features जिसका बिहेवियर एक से ज्यादा है, हाँ, एक फंक्शन में। जैसे कि पेन मैंने बोला, तो पेन क्लिक हो सकता है, कैप निकाल दो उसको, पेन को बीच से रोल कर दो, राइट। दीज आर फंक्शंस, एनी हाउ इट इज अ पेन, लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट होता जा रहा है। तो दैट ऑपरेशन परफॉर्म्ड वेरीज द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
राइट, उसका एक मतलब कैटेगरी चेंज हो रहा है कि वो ये वाला टाइप पेन नहीं है, मेरे को रेड पेन चाहिए, ब्लैक पेन चाहिए, ब्लू पेन चाहिए। तो नॉर्मल इट इज अ पेन, बट अंडर इट्स सब क्लास देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो रेड पेन का एक ब्लॉक होगा, ब्लू पेन का होगा, ब्लैक पेन का होगा, तो विच फंक्शन यू आर विनिंग। तो इट वेरीज द ऑब्जेक्ट्स, और मे और मे नॉट बी, उसके आर्ग्यूमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे वो ऑब्जेक्ट टाइप जब चेंज होगा तो। राइट, यू कैन सी दैट दिस इज द असाइनमेंट of more than one behavior to a particular function, क्योंकि functions भी ज्यादा हो सकते हैं, one or more functions in a class। अब instance variable that is defined inside a method, मेथड के अंदर लिख रहे हो, राइट। क्लास तो है ही, क्लास तो है ही, प्लस देयर इज अ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है, मतलब उसका स्कोप कम होता गया है, राइट। तो कम हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेसिबल टू एंटायर क्लास, आप कॉल कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल, इट इज अ लोकल वेरिएबल लिमिटेड टू द फंक्शन। तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, विच इज डिफाइंड इनसाइड अ मेथड एंड बिलोंग्स ओनली टू द करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इनहेरिटेंस, ऊपर मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, द ट्रांसफर, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम लोग बोलते हैं ना, ये उसको गया, राइट। सेम हैपेंस इन क्लासेस आल्सो, इफ यू वांट टू राइट इट, आपको वही कोड दोबारा नहीं लिखना होता है। यू राइट इट वन क्लास एंड कॉल इट इन द अदर क्लास, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स आपकी उसी दूसरे क्लास में ऑटोमेटिकली जैसे हैं वैसे डिस्क्राइब्ड जैसे हैं वैसे आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास to the other class that are derived from it। ये होता है इनहेरिटेंस। मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, a unique instance of data structure that is defined by a class, right? Objects can hold both data members and methods. I'll write the definition here so that it will be easy for you to understand. A unique instance of a data structure that is defined by its class, तो वो ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइन होना चाहिए, और एन ऑब्जेक्ट comprises of both डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स, दोनों चाहिए उसको, डेटा भी लगेगा और कैसे ऑपरेट करना है वो भी लगेगा। इफ दैट इज द केस, it is called as an objects, right? So these are few of the definitions before starting with the entire topic of object oriented ना, ये आपको सारी चीजें important हैं, you need to understand this, right? Any queries from your side for these terminologies, कि कोई पार्ट समझ में नहीं आया है? I'll be repeating this when we write classes also, लेकिन एकदम आपको नया नहीं लगेगा, so once you understand this we'll move forward। Any query from this terminologies? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, एक और बार बता दीजिए। इंस्टेंस वेरिएबल, सी दिस इज द पार्ट हियर, इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस मतलब एक, अगर कुछ हमने स्टार्ट किया है तो उसको कॉल कैसे करेंगे। हाँ, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू एज हीप एंड स्टैक, राइट। अब मान लो कि ये वाला एग्जांपल है यहाँ पे, n इक्वल टू 10, जब हम उसको इनिशियलाइज करके कुछ वैल्यू असाइन किए हैं, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा, वेदर इट विल गो ऑन हीप और स्टैक। सी आई विल टेल यू, अगर सिर्फ n दिया है, इट इज ओनली डिक्लेयर्ड,
कि n नाम का एक वेरिएबल होगा, राइट? वो कहीं तो है, राइट? इट इज इन द मेमोरी एज इट इज डिक्लेयर्ड। उसका वैल्यू कुछ नहीं है। द मोमेंट यू राइट इट एज n इक्वल टू 10, अब इनिशियलाइजेशन हो गया है। इट विल बी स्टार्टिंग विथ 10, इट इज होल्डिंग समथिंग, उसको एक परमानेंट स्टोरेज मिल गया है। Yes, sir. मोमेंट इट वाज n, इट वाज इन पूल ऑफ मेमोरी, मेमोरी का बहुत सारा जो पूल होता है ना उसमें है। आई गेस आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ स्विमिंग पूल। अगर स्विमिंग पूल पानी से भरा हुआ है एंड यू पोर वन बकेट ऑफ वाटर, राइट? यू कैनॉट आइडेंटिफाई दैट बकेट ऑफ वाटर जो आपने स्विमिंग पूल में डाला था, बट यू नो कि दिस bucket of water is somewhere here in the swimming pool itself, but you cannot extract it. Now, the moment you're telling it as n equal to 10, you're giving that bucket of water some space. आप उसको एक परमानेंट स्टोरेज दे रहे हो कि n इक्वल टू 10 का वैल्यू इसी एड्रेस पे हमेशा रहेगा एंड यू कैन फेच इट वेन एवर यू वॉन्ट इट, राइट? तो ये होता है वेरिएबल। अब देखो, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड अ मेथड, एक मेथड में उसको लिखा है, एंड बिलोंग्स ओनली टू द करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, उसी क्लास को बिलोंग करेगा वो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेथड नेम सेम है, तो Hmm. कौन से मेथड को मैं बिलोंग करूं? तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो वी राइट दो सिमिलर फंक्शंस। इधर एक क्लास में लिखेंगे तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। सेपरेट अगर करना है हमें, तो वो दोनों मेथड्स को हम दोनों अलग अलग क्लासेस में डाल देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. रूप says data hiding. Data hiding is a kind of abstraction we call it. उसको एक प्रॉपर जो कीवर्ड है, एक्चुअली 4 कीवर्ड्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म विल बी सीइंग हियर। ये टेक्निकली प्रोग्रामेटिकली हम लोग देख सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन इज अ थियोरेटिकल पार्ट। मतलब उसको समझना होगा कि क्या एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या डेटा हाइड कर रहे हैं हम लोग, राइट? व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रैपिंग अप एवरीथिंग इनटू अ सिंगल एंटिटी, और वो एंटिटी का नाम हम क्लास दे रहे हैं। तो जो भी लिखेंगे हम, वो क्लास के अंदर होगा। नथिंग विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ अ क्लास। सो इफ एवरीथिंग इज रिटन विद इन अ क्लास, it is an object oriented programming language. Now we hide data with access specifiers, right? And we provide privileges by using access modifiers. Exactly. Public, protected, and private. Hmm? Then we have static, volatile, extern. These are access modifiers. इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं? Actually, we do not hide any data, right? What we do is we provide some privileges. For example, there are in many books this a common example is given. जब आप साइकिल चला रहे होते हो, यू अप्लाई ब्रेक्स सडनली, राइट? अब वो ब्रेक में एक यूनियन होता है, एक वायर होती है, आगे का ब्रेक होगा, पीछे का वायर होगा, देयर विल बी रबर पैड्स अटैच टू दैट योर व्हील। आपको क्या करना है फंक्शनिंग, कि सिर्फ वो ब्रेक को प्रेस करना है, पकड़ के रखना है, ब्रेक लग जाएगा। डू यू नो द फंक्शनैलिटी हाउ इट इज वर्किंग? गाड़ी का, फोर व्हीलर के ब्रेक का आपको पता है? नहीं, सिर्फ पेडल दबाना है, ब्रेक लग जाएगा। इंटरनली क्या फंक्शंस हो रहा है, दिस इज हिडन, राइट? सो डेटा हमको मालूम है कि ब्रेक पैड होगा, ये पेडल होगा, ये कार में इस तरह से लगेगा, वो कार के ड्रम पे जाके चिपक जाएगा जोर से और उसको स्पीड कम करके ब्रेक लगा देगा, राइट? दिस इज वी नो, बट एक्सेस है हमें, ओपन करके देख सकते हैं हम लोग, राइट? सॉफ्टवेयर में क्या होता है, दिस ऑल आर बीइंग प्रोटेक्टेड, उसको हाइड करके, मतलब प्रिविलेज नहीं दिया जाता। ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन कैन लुक इनटू। तो जब गाड़ी खराब हो जाती है, इफ यू आर एज एन नॉर्मल बीइंग वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी वर्कशॉप में दे के आते हैं। द मैकेनिक विल ओपन इट, डू द राइट थिंग्स, सेट इट अप, एंड देन विल लेट यू नो कि भाई आपकी गाड़ी अभी ठीक हो चुकी है, राइट? सो द डेटा हाइडिंग पार्ट, it is more based on privileges,
तो प्रिविलेज हम देते हैं एज इन पब्लिक। मान लो पब्लिक मतलब एक्सेसिबल टू एवरीवन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप एनीवन, जैसे कि गेस्ट ऑपरेटर होता है ना, कि एक वेबसाइट पे आ जाओ और सर्व कर लो, एनीवन कैन सी इट। प्रोटेक्टेड, only a few members whom I want to share my data with can be accessible, right? Private, मेरा जीमेल का अकाउंट है, आई विल नॉट शेयर माई जीमेल आईडी एंड पासवर्ड टू अदर्स, दैट इज अ सिंगल इंस्टेंस, मैं अकेला यूज करूंगा उसके लिए, राइट? दैट कैनॉट बी लाइक एक अकाउंट पे दो लोग काम कर रहे हैं, दैट विल बी सिंगल पार्ट, मतलब वो अकाउंट प्राइवेट है। बैंक अकाउंट्स आर प्राइवेट, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, दे आर नॉट पब्लिक इवन। तो ये जिस तरह से होता है ना, देखो प्रिविलेजेस, इसी तरह से डेटा के लिए भी प्रिविलेजेस होता है। So we use this in classes, objects, and methods. Getting my point? Arup, is it clear? Okay, any other queries? Please let me know. Okay, तो inheritance क्या होता है? Deriving the attributes from another class, right? Now there might be a parent class and a child class. Hmm? तो अगर parent class में कुछ attributes हैं which you want to use it in the other class, उसको वापस redefine करने की जरूरत नहीं है, right? Once the class is derived from parent to child, all the attributes in the parent class will be carry forwarded as and when you call through an object in the child class, right? अब इस तरह से मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं, एक पेरेंट क्लास के टू और मोर क्लासेस हो सकते हैं। अगर वन ऑन वन है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगा, वन पेरेंट क्लास टू अनदर चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड एज सिंगल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक ही क्लास है वहां पे। हम्म अगर एक से ज्यादा है, मतलब क्लास ए इज पेरेंट, क्लास बी इज चाइल्ड एंड क्लास सी इज चाइल्ड, सो देयर आर टू डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। ए के साथ दो क्लासेस डिराइव्ड हैं, बी एंड सी, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि वो क्लास से दो क्लासेस इनहेरिट हुए हैं। नाउ द थर्ड इज मल्टी लेवल, राइट? जैसे सिंगल में था, ए से बी डिराइव हुआ, राइट? एक ही क्लास डिराइव हुआ है, एक पेरेंट से एक चाइल्ड डिराइव हुआ, देन अगेन फ्रॉम दैट चाइल्ड अनदर क्लास इज डिराइव्ड, राइट? एक ही सीक्वेंस में है, that parent to child, that child will be acting again as in parent and having a child class. देखो यहाँ पे मैं तुमको दिखाता हूँ, I'll write it the code here. Simple example, A to B. A is parent and B is child class. So this will be treated as single inheritance. And if I'm having A with B comma C करता हूँ मैं, राइट? मतलब A से दो क्लासेस इनहेरिट हो रहे हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस एज? मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, ए से बी डिराइव हुआ, बी से सी डिराइव हुआ, राइट? एज इन ग्रैंड पेरेंट, parent and child, right? So in this case here, B will be acting as both parent class as well as child class. Parent class will be for C, child class will be for A, right? इस तरह से you can have attributes of A directly into class C, क्योंकि A के attributes B में है as it is a derived class. So जो कुछ भी B में है additionally apart from A class will be hand over again in the C class. This type of called
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और दो होते हैं, दैट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड hierarchical, and these are the combinations of these three. Okay, getting this? From the interview point of view, ये terminologies बहुत important है. आपको अगर concept clear है, if they feel that your concept is more clear, तो कोड लिखने में आसानी होता है. एंड इफ योर आइडिया इज नॉट क्लियर, योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लियर, आप कोडिंग लिख रहे हो तो दैट माइट फील वेरी इजी टू राइट कोड इन पाइथन. लेकिन जब बग्स क्रिएट होंगे ना, इट विल टेक मोर टाइम, राइट? तो व्हाट मेनी कंपनीज प्रेफर कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, जो जो जब हम प्रोजेक्ट लिखने के लिए बैठते हैं तो यूजर के रिक्वायरमेंट्स कितने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुए हैं, एंड हाउ मोर ऑप्टिमाइज्ड कोड यू कैन राइट will make your project in less time. अदरवाइज वो बग्स निकालने में इतना टाइम चला जाएगा कि ऑप्टिमाइजेशन तो होगा नहीं, लेकिन वो बग्स भी ज्यादा टाइम लगाएंगे. हम्म, ये जो टर्मिनोलॉजी है, दिस विल हेल्प यू वेरी मच इन द इंटरव्यू. द लास्ट पॉइंट एज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स टू चेंज इनटू. एक चीज से दूसरे में चेंज हो रहे, राइट? नाउ हियर इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हाट वी यूज ऑब्जेक्ट्स, राइट? क्योंकि उसको डिफाइन करना है एक फंक्शन में, तो फंक्शन आएगा तो उसका एट्रीब्यूट्स आएगा. एट्रीब्यूट जब बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैरामीटर्स वी हैव गिवन. तो पॉली का मतलब होता है एक ही ऑब्जेक्ट होगा वहां पे, और वो अलग अलग रोल परफॉर्म करेगा. मान लो देयर इज अ पर्सन एज एन क्लास, उसमें आई हैव टेकन अनदर सब क्लास एज मेल. तो बीइंग अ मेल, हाउ कैन आई डिफाइन इट एज अ पॉलीमॉर्फिज्म? अ मेल बीइंग, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स उसको क्या दे सकते हैं हम लोग? मान लो कि दैट मेल इज अ टीचर, जब वो जहाँ पे वो काम कर रहा है. ही इज एन एम्प्लॉय, जब वो घर आता है तो ही इज अ फादर, ही इज अ सन, ही इज एन हस्बैंड, राइट? तो एक ही ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन जगह चेंज होने की वजह से उसके फंक्शनैलिटीज चेंज हो रहे हैं, राइट? बट यू आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये उसके मल्टीपल फॉर्म्स हुए ना, कि एक क्लास मल्टीपल काम कर रहा है विथ सेम नेम. दैट इज सिंगल ऑब्जेक्ट हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म मेनी थिंग्स, राइट? एनी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मल्टीपल फॉर्म्स दे रहे हो तो दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सपोर्टेड है. दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्लियर हो रहा है ये पॉलीमॉर्फिज्म? ठीक, सो इसका जो प्रोग्रामिंग पार्ट है, हाउ टू राइट ए क्लास, हाउ टू राइट एन ऑब्जेक्ट, मल्टीपल क्लासेस कैसे लेंगे, नेस्टेड क्लासेस कैसे लेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे, how will you define the arguments, the parameters, all these technicalities we'll be seeing in our next lecture, right? So this is very important. Till then आप ये जो थर्ड मॉड्यूल के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उसके असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, एंड यू गो विद दिस थियरी पार्ट, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको मैं सेव कर लेता हूँ सो दैट आई कैन शेयर यू टुडे. ये फाइल अभी मैं आपको शेयर करता हूँ आफ्टर द सेशन, एंड इसमें मैं बाद में ऐड कर दूंगा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विच विल बी योर होमवर्क असाइनमेंट्स. आपको ये आने वाले वीक में कंप्लीट करना होगा. ओके, let me know if you have any queries, otherwise we'll stop here today and we'll meet in the next week. Okay, then I'll share you the file. You go through that file, study well,
थियरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो समझ में आ रहा है then we can easily understand the next weeks. So then we'll stop here. Over to you, sir.